Nice to meet you. I'm Khadir Chuktai, and you're watching my YouTube channel, School of Advanced Chemistry. I'm going to explain Electrochemistry A2, chapter number 2, part 1, Electrochemistry, and I'm going to do a crash course revision, a journal overall overview for the part 1 of Electrochemistry for A2 chemistry students. Let's get started. I'm going to explain electrolysis part 1. In this part, we are going to talk about to predict and identify the substances liberated during the electrolysis, the state of electrolyte molten or aqueous, according to the position of that ion and the concentration of that ion and the position of that ion in its redox or electrochemical or electrode potential. So the first one, basic thing, pehli cheez, okay, that you have been studied in your O-level chemistry, that if you are going to electrolyze two compounds, two positive and two negative ions mixture, then which one positive or negative ion will go first towards the electrode, cathode or anode. उसके लिए मैंने एक जरूर बताया हुआ है आपको, एक दफा फिर मैं वही रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, आप अपने पास लिख लेंगे फर्दर मोर. If I'm quite capable to record this lecture precisely and accurately, then I will send it to you. But first of all, let me see how to check what are the general basic rule. Basically, जो मेन थीम है, मेन फीचर है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास स्पीकर के अंदर I'm having the solution that is having zinc nitrate, aqueous nitrate ion, and zinc 2 positive ion. And the same beaker is having Cu2 positive ion and same nitrate ion. So two type of positive ions are there. And as you know, I wrote aqueous over here. So because of aqueous mean water, and because of water, there is the presence of H positive ion and OH negative ion concentration as well. So in this speaker, there are basically three positive ion: H positive ion from water, zinc 2 positive ion from water, zinc 2 positive ion from nitrate, and copper 2 positive ion from the copper nitrate. So three positive contestants are over here. Which one is going to, winner, and which one will be the runner up? It depends upon the concentration, number one. It depends upon the concentration. अगर किसी आयन की concentration बहुत ज्यादा है, it can be the winner one. It can gain the electron first. So one of the important factor is this one, concentration. Number two, or number one, you can say, मैं इसको number two कर रहा हूँ, इसको number one कर रहा हूँ. Number one is the position of ion in electrochemical series in ECS. किसकी पोजीशन, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा है और किसकी कम है, ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से चेक कर सकते हैं. अगर आपको प्रॉपर डाटा बुकलेट गिवन है तो वहां से तो बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं. जिसका ई नॉट की वैल्यू मोर पॉजिटिव होगा, ई नॉट मोर पॉजिटिव, एंड दैट विल बी मोर कैपेबल टू स्नैच टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. तो दो फैक्टर हैं, कंसंट्रेशन, दूसरा क्या है, position of that ion in reactivity series or electrochemical series. The third one, you can say, if the data booklet is given, then you can check it from, you can find it, you can check, you can confirm it from its value of electrode potential. जिसका electrode potential ज़्यादा होगा, that will be having more power to gain the electron, to snatch the electron. एट द मोमेंट अगर तमाम की कंसंट्रेशन लेट्स सपोज 1 मोल पर डीएम क्यूब है, 1 मोल पर डीएम क्यूब है, तो फिर आपको ये रूल्स लगाने पड़ेंगे. अगर कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है तो फिर यानी जनरली 1, 2 एंड
3 you can say. Then you will check its position in the electrochemical series. अब इस यहां पर आइए, सबकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है, मेरे पास कोई डाटा बुकलेट नहीं है, आई डोंट हैव द वैल्यूज ऑफ ई नॉट, तो मुझे इन तीनों में से चूज करना है कौन सा पॉजिटिव आयन, जब आप इसमें इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, रॉड्स 2 डिप करेंगे, एक होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव, सो कौन जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहले और इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो मुझे थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ओ लेवल की रिएक्टिविटी सीरीज याद आ रही है। क्या थी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? जनरली मैं मेटल की लिख रहा हूं, तो जिंक वाज मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, आई एम सॉरी, hydrogen is even non-metal, but it can be compared to the gain of or the loss of electron. So zinc is more active than hydrogen element is more active than copper. ये reactivity series है element की, यूं more reactive to less reactive, और जो आयन की होगी वो रिवर्स होगी. In case of ions it is more and this one is less. यानी एक ही बीकर में कॉपर आयन भी है, एच पॉजिटिव आयन भी है, जिंक आयन भी है, सो विच वन आयन विल बी कैपेबल टू गेन द इलेक्ट्रॉन, टू स्नैच द इलेक्ट्रॉन? तो सबसे पहले ये कॉपर गेन करेगा. वैसे भी मैंने, अगर आपने मुझसे ओ लेवल में केमिस्ट्री पढ़ी है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 कंपार्टमेंट होते हैं, आपने उनका ख्याल करना है पॉजिटिव आयन के लिए. तो स्पेशली मैं दोबारा यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 2, ग्रुप 3, इनका कोई भी एलिमेंट हो और उनके सामने एच पॉजिटिव आयन हो तो ये नहीं जाएंगे. दे आर नॉट विनर, दे कैन नॉट बी आई मीन कैपेबल टू गेन द इलेक्ट्रॉन. ये कभी भी जाके इलेक्ट्रॉन स्नैच नहीं कर सकते इफ वाटर इज कंटेस्टेंट इन फ्रंट ऑफ ग्रुप 1 मेटल आयन, ग्रुप 2 मेटल आयन, ग्रुप 3 मेटल आयन, ये तो नहीं जाएंगे. आखिरी कंपार्टमेंट क्या था? कॉपर था, मरकरी था, सिल्वर था, AgAu या प्लेटिनम, आई मीन चलें, और हम 3 पॉजिटिव. कॉपर से जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो उनके आयंस, दे विल गो देमसेल्फ, दे विल ऑलवेज बी विनर इन ऑल सिचुएशन इफ द वाटर इज कंटेस्टेंट इन फ्रंट ऑफ देम और विद रिस्पेक्ट टू देम. अगर पानी है और ये आयन मौजूद हैं, I'm going to highlight them with red pen. अगर ये आयंस मौजूद हैं और वर्सेस H2O है, पानी है, ये खुद जाएंगे, कंसंट्रेशन सामने वाले की जो मर्जी हो, मैटर नहीं करती. अगर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के एलिमेंट हैं, आयन है, आई मीन मेटल आयन, सॉरी, उनके सामने मुकाबले में H पॉजिटिव आयन या H2O है, पानी है, तो वो कभी भी नहीं जाएंगे. यहां पर भी कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती, जितना मर्जी कंसंट्रेटेड हो, नहीं जाएंगे. अब इसका मतलब यह है कि ये 2 एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ये वाली भी हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, और पहले जो होते हैं जिंक से पहले वाले, लाइक पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये वाले. यहां पर अगर एल्यूमिनियम तक के कोई आयंस मौजूद हैं, ये मैं उस वक्त बता रहा हूं, आपने ये स्कीम लगानी है व्हेनेवर यू आर नॉट हैविंग एनी एक्सेस टू द डाटा बुकलेट. अगर डाटा बुकलेट का आपके पास है, कोई चीज मटेरियल है आपके पास, है कोई, आई मीन पीस ऑफ डाटा बुकलेट है, तो फिर आप वहां से चेक कर सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा. अब बाकी बच गए हैं सिर्फ 4 आपके सिलेबस में मेटल आयन, उनको मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूं. वो है जिंक 2 पॉजिटिव आयन, tin 2 positive or 4 positive ion, Pb, sorry, iron भूल गया, iron 2 positive or 3 positive ion, and Pb 2 positive ion. So there are these 4 ions, those are over there, in which you will have to decide which one will may go or which will may not go. यहां कंसंट्रेशन मैटर करती है, यहां पर ना पहले सेक्शन में मैटर करती है ना आखिरी सेक्शन में. सिर्फ 4 एलिमेंट के लिए एज पर एज द नॉर्मल जनरल एक्टिविटी सीरीज इज कंसर्न, सारे मेटल तो मैं नया यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, मुझे याद है. और ये जर्नल मेटल जो अक्सर आपके सिलेबस में होते हैं, लाइक
ओ लेवल में जो एक शॉर्ट रिएक्टिविटी सीरीज है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। तो ये अगर कंसंट्रेटेड हैं, कंसंट्रेटेड मीन पानी कम है और इनके साल्ट ज्यादा हैं, तो ये फिर खुद जाएंगे। आयरन चला जाएगा, जिंक जाएगा, टिन जाएगा, लेड जाएगा, ये सिर्फ चार। अगर ये कंसंट्रेटेड नहीं है, कंसंट्रेटेड हैं तो ये खुद जाएंगे। इफ द सोल्यूशन इज डाइल्यूट, देन अगेन फिर H पॉजिटिव आयन या पानी जाएगा। तो ये है टोटल कहानी, विच वन विल बी द विनर एट कैथोड। कैथोड पे कौन विनर होने जा रहा है, ये बातें अगर आप याद रखेंगे तो आई होप यू कैन सॉल्व 90% क्वेश्चन ऑफ दिस पोर्शन फ्रॉम योर पास्ट पेपर हिस्ट्री। 90%। आपको ज्यादा बार बार डाटा बुकलेट नहीं देखनी पड़ेगी, ज्यादा चीजों को याद नहीं रखना पड़ेगा, बस आप इनको अपनी याद रखना है, स्पेशली इनको। नाउ कम टुवर्ड्स द नेगेटिव आयन सीरीज। नेगेटिव आयन में कौन कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, उसमें भी मैं आपको जर्नल अभी बताने लगा हूं कि OH नेगेटिव आयन इज अ मोर रिएक्टिव, then Cl negative ion, then NO3 negative ion, then SO4 2 negative ion. सो जनरली इन दोनों में मुकाबला रहता है, Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में। OH नेगेटिव आयन का मतलब पानी है, वाटर है। जैसे अगर आपने पानी यूज किया हुआ H2O, तो उस वक्त हम लिखते हैं OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव आयन और Cl अगर नॉर्मल कंसेंट्रेशन है, नो वन इज इन एक्सेस, तो ये सीक्वेंस चलेगा। और मजे वाली बात है कि ये नाइट्रेट और सल्फेट तो कभी भी ऑलमोस्ट नहीं जाते अगर पानी हो तो। पानी इतना इनसे मोर रिएक्टिव है, OH नेगेटिव आयन या वाटर इतना पावरफुल है कि पानी के होते हुए कभी नाइट्रेट या सल्फेट आयन अपने आप को डिकम्पोज नहीं करते हैं जनरली। हाँ, पानी बहुत कम हो, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हो, सल्फेट बहुत ज्यादा हो, हाईली कंसंट्रेटेड हो, तो उस वक्त ये चांस हो सकता है कि सल्फेट और नाइट्रेट आयन दे मे गो टू द एनोड, दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, दे कैन मेक द रिस्पेक्टिव डिफरेंट कंपाउंड्स आर द प्रोडक्ट। अलबत्ता ये Cl नेगेटिव आयन कभी कभी स्किप करता है अपनी पोजीशन को। अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, तो अगर यहाँ कोई भी हेलाइड आयन हो, कोई भी Cl नेगेटिव आयन, Br नेगेटिव आयन, I नेगेटिव आयन, तो वो OH को डोमिनेट कर जाएगा। उसकी कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे मैटर करती है। अगर Cl नेगेटिव आयन ज्यादा होगा तो बेसिकली वो OH से, ये पानी से पहले जाएगा। सिर्फ एक्सेप्शन यहाँ पर Cl है। Cl नेगेटिव आयन, Br नेगेटिव आयन, I नेगेटिव आयन इज द ओनली एक्सेप्शन इन दिस केस। तो बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी OH मीन, अगर आपने अल्कली ऐड किया तब भी OH वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर आपने पानी ऐड किया हुआ है तब भी आपने OH नेगेटिव आयन से शुरू करना है और चलते जाना है। वंस अगेन, अगर आपको डाटा बुकलेट गिवन है तो फिर आपको कोशिश, प्रेफरेबली यू शुड कंसल्ट द डाटा बुकलेट फर्स्ट। उसमें देखें कि दो नेगेटिव आयन हैं और उन दोनों नेगेटिव आयन में से किसका मीन पावर इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है। नेगेटिव में हम इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर देखते हैं, पॉजिटिव में हम इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर। पॉजिटिव आयन, दो तीन पॉजिटिव आयन को कंपेयर करना हो, डायरेक्ट आंसर देखते हैं, डायरेक्ट जो लिखे होते हैं सामने। लेकिन जब आप नेगेटिव आयन को कंपेयर करते हैं तो आप उनको इन्वर्स करके उनके आंसर देखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की ताकत किसकी ज्यादा है, वो जल्दी जाएगा एनोड पर और उस वक्त अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। हाँ, अगर एनोड बेचारा नॉन इनर्ट है, कॉपर वगैरह का एनोड बना हुआ है, तो वो खुद डिसॉल्व हो जाएगा। एंड whenever wherever the anode is going to dissolve, there will be no any sort of product form at that terminal। जो बेचारा एक रॉड खुद मर रहा है, खुद अपने आप को पानी में हल कर रहा है, अपने आप को सेक्रीफाई कर रहा है, तो उस वक्त वो किसी और प्रोडक्ट को सपोर्ट या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता, किसी आयन को अपने ऊपर नहीं आने देता। दैट इज द बेसिक जनरल जेस्चर। तो ये एक पहला जो मैंने कोशिश की है कि आपको रिवाइज करवा दूं इस पहले पॉइंट को, कि कभी भी अगर आपको चूज करना पड़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी की बात करता हूं, अगर वो कहते हैं जी मेरे पास आई एम हैविंग द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ जिंक नाइट्रेट एंड आई मीन इसके अंदर कॉपर सल्फ नाइट्रेट डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूट CuNO3 और वाटर है। अब मैंने थोड़ा डिफिकल्ट कह लें या डिफरेंट क्वेश्चन बनाया ये, कि जिंक को मैंने कंसंट्रेटेड डाला है
उसी बीकर के अंदर मैंने कॉपर नाइट्रेट डाइल्यूट डाला है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव आयन विल गो टुवर्ड्स द कैथोड? कैथोड पे जिंक जाएगा या कॉपर जाएगा? तीसरा एच पॉजिटिव आयन भी है। तो अब आपने पहला देखें, इस कंपार्टमेंट को देखना है। क्या इस कंपार्टमेंट में से कोई है? यस है, कॉपर है। हालांकि कॉपर डाइल्यूट है, लेकिन ये किस कंपार्टमेंट में से है? आखिरी में से। हर सूरत में जाएगा, बेशक भले जितना ही जिंक नाइट्रेट कंसंट्रेटेड क्यों ना हो, कॉपर जरूर जाएगा, लाजमी जाएगा, पहले जाएगा। when the concentration of copper ceases or it approaches to almost zero, उस वक्त फिर जिंक डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिंक कंसंट्रेटेड है। अगर जिंक कंसंट्रेटेड ना होता फिर मैं एच पॉजिटिव आयन को भेजता। तो ये यही स्कीम आपने अगर लगाएंगे पास पेपर क्वेश्चन में, होपफुली इंशाल्लाह मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक सॉल्व हो। अब यहाँ पर नाइट्रेट आयन है, नेगेटिव आयंस, और दूसरा हमारे पास जो आयन है वो OH नेगेटिव आयन फ्रॉम वाटर, पानी के आयंस हैं। तो इन दोनों में से कौन विनर होगा? तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, ये नाइट्रेट आयन है और ये पानी मौजूद है, तो पानी की पावर ज्यादा है, तो यहाँ पर पानी जाएगा या OH नेगेटिव आयन जाएगा। जो पुरानी इक्वेशन है आप वो भी लिख सकते हैं, डाटा बुकलेट वाली इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है, बताई हुई है। डाटा बुकलेट अगर गिवन हो तो वो भी लिख सकते हैं, वहां से देख के लिखनी है। अगर पुरानी इक्वेशन लिखनी है तो वो है 4OH नेगेटिव आयन गोज टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 गैस बनेगी, विद 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह आप फिर उन इक्वेशन को बैलेंस करके ओवरऑल क्या बन रहा है वो भी वो आपसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये एक जनरल मैंने आपको, आई मीन आई tried my level best to give you the overall picture that how to predict the answers at cathode and anode whenever you are going to electrolyze the dilute electrolyte या द मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टन इजी है, मोल्टन तो बहुत ही इजी है, वेरी इजी, नॉर्मल है, उसमें पानी नहीं है। तो जो पॉजिटिव है वो जाएगा कैथोड पे, जो नेगेटिव आयन है वो जाएगा एनोड पर। अगर दो मोल्टन आपने इकट्ठे किए तो फिर यही कॉन्टेस्टेंट शुरू हो जाएगा, फिर यही रिएक्टिविटी सीरीज आप चेक करेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना मुश्किल या इतना कॉम्प्लिकेटेड वो आपसे पूछें। बेसिक कॉम्प्लिकेशन आती हैं व्हेन एवर यू आर गोइंग टू डिसॉल्व वन और मोर सॉल्ट इनटू एक्वस मीडियम। तो ये चीज थी आज के लिए, आई मीन अभी तक के लिए। यहां तक कोई चीज समझ ना आई हो, प्लीज लेट मी नो। इफ यू वांट टू टेक इट्स पिक्चर यू कैन टेक इट, अपने पास कोई रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू erase it in next moment। जी नहीं, ई नॉट की वैल्यू उस वक्त वैलिड होगी वेन एवर द कंसंट्रेशन आर इक्वल। अगर कंसंट्रेशन बराबर है, हाँ जी। दूसरा मैंने जो आपको ये रूल बताया ना, ये टेबल बताइए नीचे, ये जर्नल बताया है। अगर आप ये आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा। एंड ये कब यूज करना है? वेन एवर द डाटा बुकलेट इज नॉट गिवन। गॉट इट? अगर डाटा बुकलेट गिवन है तो फिर वो आपसे प्रिसाइज आंसर मांग रहा है, और फिर कंफर्म बताया गया होगा कि अगर इनमें से कोई ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो उसके बारे में भी बोला गया होगा। कोई नॉर्मल कंसंट्रेशन है या मीन अगर नहीं है तो फिर आप एज्यूम करेंगे कि दे ऑल आर हैविंग एट द सेम कंसंट्रेशन। डाटा बुकलेट देने का मकसद ही यही होता है कि आप आपने आंसर वहां से चूज करना है। इस इन द लाइट ऑफ डाटा बुकलेट आपने आंसर देना है, रिपोर्ट करना है। अगर जनरल क्वेश्चन पूछा है, देयर इज नो एनी पीस ऑफ डाटा बुकलेट गिवन, देन सिंपली यू विल अप्लाई द जनरल रूल्स। ये मैंने आपको जनरल रूल बताए हैं, दीज आर नॉट स्पेसिफिक। अगर जनरल क्वेश्चन पूछे तो आपने यही लगाने, आपका आंसर ठीक आएगा। वो आंसर जो भी आएगा आपका अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम वो एक्सेप्टेबल होगा मार्किंग स्कीम में। लेकिन अगर डाटा बुकलेट गिवन होगा तो फिर, और डाटा बुकलेट की वैल्यू भी हम कब यूज करते हैं? when the all contestant are having same value of its their concentrations। तो कंसंट्रेशन उनकी सेम होनी चाहिए, तो उसके बाद हम उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये इजी है, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा आपको केयर रखनी पड़ती है नेगेटिव आयन में Cl की,
और इधर इन 4 मेटल आयन की। जनरली तो अगर आपको ये चीजें आप पता है और जनरल क्वेश्चन आ गया है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप उसको कर लेंगे। The next one thing is Faraday constant state and apply the relationship Faraday is equal to L into E between the Faraday constant, Avogadro's number, and the charge on the electron. Basically, Faraday is the unit of charge. एक जैसे मोल होता है या एक डजन होता है, इसी तरह का एक फैराडे चार्जेस होंगे, बहुत ज्यादा होते हैं ये, इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इनको भी सम अप करके जनरली एक और क्वांटिटी में कन्वर्ट किया गया, उसको फैराडे बोलते हैं। अभी फैराडे की का नंबर आपने याद रखना है, ये क्या होगा जनरली, ये उर्दू में बोल रहा हूं 96,500, राइट। 96,500 कोलम इज इक्वल टू 1 फैराडे। एक यूनिट है, एक रूल बना दिया गया, एक फार्मूला बना दिया गया, ठीक है। एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू एल। एल कैपिटल का मतलब जहां पर भी आएगा वो एवोगैड्रोस नंबर होगा, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अभी एक यूनिक रिलेशनशिप है ये, यानी अगर आप किसी डब्बे में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लें, if L is equal to 1, I mean 1 Avogadro's number 6.0 to 10 power 23, 1 मोल के लिए अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जमा कर लें किसी डब्बे के अंदर और फिर उनके चार्जेस को काउंट करें सबको, तो उनके चार्जेस आएंगे 96,500 कोलम। तो ये मोलर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज बनता है वो ये है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, ये डाटा बुकलेट में गिवन है और मुख्तलिफ और क्वेश्चन में भी ये साथ गिवन होता है। क्या वैल्यू होती है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन? 1.10 to the minus 19, आई थिंक, यस, कोलम्स। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज है और इस तरह के 6.02 एंड 2 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन उस डब्बे में फिर रहे हैं, तो पूरे डब्बे के ऊपर क्या चार्ज होगा? वो होगा 96,500 कोलम। तो ये एक रिलेशनशिप है जिसमें हम मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से। उसका जो मैं समझा हूं या जो मेरे नजदीक इसका एक सिंपलेस्ट वर्जन है वो ये है कि इट इज अ मोलर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये मोलर क्वांटिटी है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, मेरी बुक में भी लिखा हुआ है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500, दैट इज आल्सो इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी यही है, इसी को 1 फैराडे कहते हैं। और उसकी वैल्यू रफली, एक राउंड ऑफ फिगर है, 500 एग्जैक्ट नहीं है, 96,500 बोलते हैं इसको। तो बेसिकली इस तरह का एक थीम जो है वो आपने दिमाग में रखना है। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है, इसको मैं डिफरेंट पेज के ऊपर लिखना चाहूंगा, यहाँ मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही वो ओवर क्राउड हो गया। सो लेट्स सी ओवर हियर। आज के लिए मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें बताने की कोशिश कर रहा। द नेक्स्ट थिंग इज Q इज इक्वल टू I into T। जब भी आप किसी डब्बे में से, डब्बे मीन बीकर में से आप 2 इलेक्ट्रोड्स लगाकर उसमें से करंट पास करते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपस में दे आर मैथमेटिकली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे से इनका ताल्लुक है, कितना चार्ज गया, कितने टाइम के लिए गया, कितनी पावर का आपने करंट भेजा, उसी हिसाब से केमिकल रिएक्शन होगा, उसी हिसाब से कोई गैस बनेगी उतने मोल, उसी हिसाब से कोई सॉलिड डिपॉजिट होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, उसी हिसाब से रॉड डिसॉल्व होगा। तो बेसिकली Q इज द कोलम, दैट यूनिट इज कोलम, चार्ज है ये Q। I इज द करंट दैट इज मेजर्ड इन एम्पेयर। Time is measured in second, that is the time span used for that experiment। तो इन तमाम के यूनिट भी आपने चेंज नहीं करने हैं। अक्सर वो टाइम
आवर्स में दे देते हैं तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करके पुट करना है। या कभी भी अगर आप ये फॉर्मूला यूज करके टाइम निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट टाइम पीरियड विल बी इन सेकंड। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि 96,500 कोलम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कहीं पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का हो तो उसके ऊपर इतना चार्ज होगा। ये फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। आपने यही याद रखना है। यस, ये याद रखना मजबूरी है क्योंकि वो डायरेक्टली वो पूछते हैं, ये रिलेशनशिप पूछते हैं आपसे। बस इसको आपने इस हद तक याद करना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यह है कि अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो उससे आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। वो ये है कि फॉर एग्जांपल Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये डाटा बुकलेट में ऐसे लिखी हुई है ये इक्वेशन, लेट्स सपोज इन एक्वस मीडियम। तो अब यहां से हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? हम ये ले सकते हैं कि इसका MrAr बनता है 64 ग्राम। 64 ग्राम कॉपर अगर आपने कहीं पर डिपॉजिट करना है तो आपको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे 1 मोल ऑफ कॉपर आयन को। यानी किसी बीकर में 1 मोल कॉपर आयन पड़ा हुआ है, उसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन उसको दे दें। आई मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम लगेगा, एकदम से वो गेन नहीं करेंगे जाहिर है। और वो जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे कॉपर आयन, तो वो 64 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा उस रॉड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा था। अब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता हो तो मैस निकाल सकते हैं, मैस का पता हो तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सेम इज द केस, अगर आपको मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता है तो इसके ऊपर चार्ज भी निकाल सकते हैं आप। कोई अननोन मेटल है, वो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड। सो इसका मतलब यह है अगर उसका 1 मोल या 2 मोल है, वो 5 मोल यूज कर रहा है लेट्स सपोज, तो उसका 1 मोल कितना यूज करेगा? तो आप किसी भी मेटल आयन के ऊपर जो उसकी चार्ज कैपेसिटी ये कैपेबिलिटी है, पावर है, वो भी मालूम कर सकते हैं। और इन एडिशन टू दैट कि वो कितना ग्राम बनेगा वो भी मालूम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 चीजें हैं, मैस ऑफ मेटल मालूम कर सकते हैं, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं, चार्ज ऑन द मेटल मालूम कर सकते हैं। और इस फोर्थ वन एक और चीज भी, अगर आपके पास मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए देन यू कैन कन्वर्ट इनटू कॉलम्स, आप उसको कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूलाज आपने यूज करने हैं, यही थीम लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर भी आपने खिजर रूल यूज करना है। वो पूछते हैं कि प्रूव करें कैपिटल एल का आंसर। तो क्या है कैपिटल एल का आंसर? तो वही होता है, कांस्टेंट है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये आंसर आना चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है? आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो भी गिवन डाटा हो आपको, और फिर 2 किस्म के डाटाज होंगे। अगर Q इज इक्वल टू I/T वाला डाटा है तो यहां से आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। और दूसरा डाटा होगा ये मैस वाला, यहां से आपने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। आपकी जो बुक में मेथड है वो आपने यूज नहीं करना। आपने कभी भी ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करनी, आप कंफ्यूज रहेंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है ये। आपका जो भी डाटा गिवन हो, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं, उसको ऊपर लिखना है, रखना है। डिनोमिनेटर के अंदर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेशन से मालूम करने हैं, ये वाले यहां से। और फिर आपने इनको जब भी डिवाइड करेंगे, आई एम सॉरी, हमेशा आपका आंसर यही आएगा। तो आंखें बंद करके ये प्रूव आएगा, ये भी बहुत पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं। सिमिलरली वो आपसे कभी कभी फेराडे भी पूछते हैं। तो फेराडे, वो कहते हैं जी फेराडे कभी कभी पूछा है वैसे। तो इसका मतलब यह है कि अब आपने प्रूव करना है कि जो भी आपके अंदर वो आपने सोल्यूशन में जो भी काम किया है उसमें चार्ज की जो रेशियो है या ओवरऑल चार्ज है वो 96,500 है। तो उसके अंदर एक पॉइंट सेम है कि आपने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर लेने हैं इसी से, इक्वेशन से। और ऊपर आपने सिंपली क्यू का आंसर पुट करना है डायरेक्ट। यहां से क्यू निकाल लें, इक्वेशन से मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें। जब भी इन दोनों को आप आई मीन वो करेंगे, चेक करेंगे, इनकी रेशियो निकालेंगे, आंसर शुड बी इक्वल टू, फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट,
96,500 यही आंसर आना चाहिए। दीज बोथ रूल्स आर कॉल्ड खिजर रूल। ये केएससी मेथड है, केएससी रूल है। आप इनको अडॉप्ट करेंगे, सुखी रहेंगे। अगर आप टिपिकल जो फार्मूलाज मेथड गिवन है उस पे जाएंगे, आप दुखी रहेंगे, तो तंग रहेंगे। आई मीन आपसे, मेरे हिसाब से हो सकता है कोई और मेथड हो, आई डोंट नो, मुझसे अच्छा हो। यू आर आल्सो आई मीन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आप भी कोई ऐसा अच्छा मैकेनिज्म निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा मैकेनिज्म। कल हम इसके पास पेपर क्वेश्चन करेंगे इसी इसी पोर्शन के। तो वंस अगेन कम टूवर्ड्स दिस वन। तो मैंने ये आज आपको पूरा 2, 3, 4 टोटल पोर्शन पढ़ा दिया है, फिनिश्ड। ये पहला सेक्शन जिसको मैंने मेरी बुक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 के नाम से हिसाब से लिखा हुआ है, ये मैंने सारा पढ़ा दिया। अगर आपके पास मेरी बुक है तो प्लीज उसकी जो मैंने वर्क एग्जांपल सॉल्व किया है टू प्रूव कैपिटल एल स्पेशली, वो आपने बैठ के एक दफा पढ़नी है, खुद से उसको लिखना है, सॉल्व करना है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मेथड किस तरह काम करता है।